آج جو وارانسی کے ایک مسجد کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسجد میں شیولنگ ملا ہے، تو یہ مسجد نہیں تھی، مندر تھا۔ اس مندر کو پھوڑ کر مسجد بنائی گئی۔ پتہ نہیں ہمارے ہندوستان میں اس اسلام کو بدنام کرنے کی کتنی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرنے والوں، اسلام کو مٹانے کی کوشش کرنے والوں، اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالنے والوں، میرے بھائیوں، ایک مرتبہ اسلام کی ہسٹری تو پڑھو، ایک مرتبہ اسلام جاننے کی کوشش تو کرو کہ اسلام ہے کیا۔ اسلام کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ مسلمانوں، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا۔ مسلمانوں، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ سمجھنا۔ اللہ کے علاوہ کوئی گاڈ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ ایک ہی ایشور، ایک ہی اللہ، ایک ہی خدا، ایک ہی رب، ایک ہی گاڈ، سب وہی ہے۔ ایشور اللہ ہے، گاڈ اللہ ہے، خدا اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی اللہ کے سامنے عبادت کرو، اسی کے سامنے سجدہ کرو، اسی کے سامنے ماتھا ٹھیکو۔ وہی اسلام کہتا ہے اللہ کے علاوہ، خدا کے علاوہ کوئی کسی کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، کوئی کسی کو معبود مان رہا ہے، کوئی کسی کو گاڈ مان رہا ہے، ان کے خداؤں کو، ان کے بتوں کو برا بلا کہنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے، قرآن کا آرڈر ہے۔ وہ تمہارے خدا کو اگر گالی دیں گے، تم ان کے خداؤں کو گالی نہ دینا۔ اس سے اچھا اور کون سا مذہب ہو سکتا ہے؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ کے علاوہ جو دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ جو دوسروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان لوگوں کے معبودوں کو، ان کے بتوں کو، ان کے خداؤں کو تم برا بلا نہ کہنا۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اگر تم ان کے خداؤں کو برا بھلا کہو گے، وہ جہالت میں بغیر علم کے تمہارے خدا کو برا بلا کہیں گے۔ وہ کامنٹ کر رہے ہیں اسلام کے بارے میں، وہ کامنٹ کر رہے ہیں مسجدوں کے بارے میں، خدا کے بارے میں گالی دے رہے ہیں۔ مسلمانوں، اس کا جواب گالی سے نہ دینا، اس کا جواب اخلاق کے ذریعے سے دینا، اس کا جواب قرآن کا پیغام ان تک پہنچا کر ان کو دینا، اس کا جواب قرآن ان کی زبان میں ان تک پہنچا کر دینا، اس کا جواب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر، ان کے اخلاق کے ذریعے سے اس کا جواب انہیں دے دینا۔ اسلام کبھی ہارنے والا مذہب نہیں ہے، اسلام جیتنے والا مذہب ہے۔ اسلام کبھی پستی میں جانے والا، کمزور ہونے والا مذہب نہیں ہے۔ اس اسلام کو جتنا دبانے کی کوشش کریں گے، اسلام اتنا ہی بلند ہوتا جائے گا۔ ابھی جو ہندوستان میں مسلمانوں کے اوپر جو ٹارگٹ ہو رہے نا، کئی نان مسلم قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کا ریسرچ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آج تک ہم اسلام نہیں جانتے تھے، ٹی وی اینکرز جو اسلام بتاتے تھے، ہم سچ سمجھتے کہ مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ایسا ہے، ٹی وی اینکرز جو بتاتے تھے اسی کو ہم تسلیم کر لیا کرتے تھے، مان لیا کرتے تھے۔ آج ہم قرآن جب پڑھ رہے ہیں تو ہم لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ اصل اسلام کیا ہے۔ کسی بھی مسجد، کسی بھی مندر کو مسجد بنانے کا حق کسی مسلمان کو نہیں۔ اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ مندر کو پھوڑ کر تم مسجد بناؤ۔ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرنے والوں، ایک مرتبہ اس اسلام کو جاننے کی کوشش کرو کہ اسلام ہے کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کو جب فتح کرے جا رہے تھے، پورا مجمع ان کے ساتھ تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں تھے۔ جماعت جا رہی تھی یروشلم، جو کرسچنوں کا علاقہ ہے، عیسائی بھائیوں کا جو ایریا اور علاقہ ہے، یروشلم میں جب جماعت پہنچی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں، نماز کا ٹائم ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام یہاں رک جائیں گے اور نماز پڑھ لیں گے۔ اذان ہوئی نماز پڑھنے کے لیے، وضو بنایا گیا،
जाए नमाज बिछाए बाहर, खाली जगह में नमाज पढ़ने लगे। अभी नमाज शुरू नहीं हुई, ईसाई भाई देख लिए, ईसाइयों ने कहा कि तुम में अमीरुल मोमिनीन कौन है, मुसलमानों के अमीर कौन है, बादशाह कौन है, हुक्मरान कौन है? तो सहाबा किराम ने कहा कि ये अमीरुल मोमिनीन है, यही उमर फारूक है। तो ईसाई भाई अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात करते हैं। ईसाई भाई कहते हैं कि तुम्हारा नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ लेंगे? जी हाँ, हम नमाज पढ़ना चाहते हैं। क्रिश्चियन भाइयों ने कहा, ईसाइयों ने कहा, यहां बाहर क्यों नमाज पढ़ेंगे, आओ अंदर, हमारा गिरजाघर है, हमारी चर्च है, गिरजाघर है, चर्च को हम साफ कर देते हैं, धो देते हैं। और हमने सुना कि जिस जगह तुम नमाज पढ़ेंगे वहां कोई बुत नहीं होना चाहिए, कोई फोटो नहीं होना चाहिए। जो हमारा ईसा जो पैगंबर है, जिसकी वो पूजा करते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की जो क्रिश्चियंस, उनका जो स्टैचू है वो हम हटा देते हैं। तुम्हारे नमाज के पढ़ने के बाद, फारिग होने के बाद तुम नमाज से फिर हम स्टैचू लाकर अंदर रख देते हैं। स्टैचू हटाया गया, वहां से बुत हटाया गया, चर्च को धोया गया, पाक साफ किया गया। क्रिश्चियंस कहते हैं मुसलमानों से, आओ हमारी चर्च तुम्हारे लिए खाली है, तुम चाहो तो यहां नमाज पढ़ सकते हो। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके साहब और उनके साथी अंदर गए चर्च में नमाज पढ़ने के लिए। जायनमाज बिछाए, इकामत हुई, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इकामत खत्म हो गई, अल्लाहु अकबर, अभी रकात बांधना है, बस नमाज पढ़ना है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रकात नहीं बांधते, रुक जाते हैं। सहाबा किराम से पूछते हैं, अमीरुल मोमिनीन क्या हो गया, अभी तक तुम रकात ही नहीं बांधे? अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, चलो यहां हमें नमाज नहीं पढ़ना, हम बाहर जाकर नमाज पढ़ेंगे। जाए नमाज उठा लिए, मुसल्ला, बाहर गए, नमाज पढ़ने लगे। नमाज खत्म हो गई। ईसाई भाई आए, क्रिश्चियंस, अमीरुल मोमिनीन, मुसलमानों के अमीर, क्या हो गया, हमारे चर्च में तुम नमाज क्यों नहीं पढ़े? क्या हमसे तुम नाराज हो? हम मुशरिक हैं इसलिए तुम नमाज नहीं पढ़े? अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नहीं, अगर चर्च में मैं नमाज पढ़ूंगा नमाज हो जाएगी, इसलिए नमाज नहीं पढ़ा कि 200 साल के बाद, 100 साल के बाद, 500 साल के बाद कोई मुसलमान ये न कहे अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके सहाबा और उनके साथी चर्च में नमाज अदा किए थे, वो असल में मस्जिद थी। कोई ये न कहे कि मेरे सजदा करने की वजह से, मेरे नमाज पढ़ने की वजह से इस चर्च के ऊपर कोई जाहिल कब्जा ना करे, इस चर्च को मस्जिद कहकर कोई फोड़ ना डाले, कोई फितना पैदा ना हो, इसलिए मैं इस चर्च में नमाज नहीं पढ़ा हूं, बाहर नमाज पढ़ा हूं। इस्लाम क्या है? इस्लाम किसी की जमीन को कब्जा करने का हुक्म नहीं देता। इस्लाम किसी मजहब को बुरा भला कहने का हुक्म नहीं देता। इस्लाम किसी को जबरदस्ती इस्लाम में आने की बात नहीं करता, जबरदस्ती इस्लाम की दावत देने की बात नहीं करता। हमारे हिंदुस्तान के वाकयात अगर हम देखेंगे, कांदला में एक वाकया पेश आया, एक मुसलमान और हिंदू भाई के दरमियान में झगड़ा हुआ। मुसलमान कह रहा था कि जमीन मेरी है, हिंदू भाई कह रहा था कि नहीं ये जमीन मेरी है। लड़ाई हुई, आपस में झगड़ा हुआ, मुकदमा हुआ, कोर्ट में फैसला चल रहा था। ये अंग्रेज का जमाना था, ना हुकूमत मुसलमानों की थी ना हुकूमत हिंदू भाइयों की थी। हुकूमत थी तो अंग्रेज की हुकूमत थी, ब्रिटिश की हुकूमत थी। अब ब्रिटिश की हुकूमत में मुसलमान और हिंदू दोनों के दरमियान में झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना लंबा हुआ कि दोनों का जो आपसी झगड़ा था वो कम्युनिटी का मसला बन गया। मुसलमान कहता था कि अगर ये जमीन मेरी हो गई, जमीन मुझे मिल गई तो मैं मस्जिद बनाऊंगा। हिंदू भाई भी जिद में कहने लगा अगर ये जमीन मुझे मिल गई तो मैं इस जगह पे मंदिर बनाऊंगा। अब हिंदू लोग एक जगह इकट्ठा हो गए, मुसलमान लोग इकट्ठा हो गए और हिंदू और मुसलमान का मसला हो गया। हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ने लगे। अंग्रेज जज ने कहा कि ये बहुत
बड़ा मसला हो सकता है, दोनों कम्युनिटी में लड़ाइयाँ हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, आग लग सकती है, पता नहीं क्या हो सकता है। तो हिंदुओं को और मुसलमानों को बुलाकर कहा कि तुम खुद कोई रास्ता निकालो, कि इसका हल कोई निकालो, कि झगड़े के बगैर काम चल जाए, फैसला हो जाए। तो हिंदू भाइयों ने कहा कि हम एक काम करेंगे, एक मुसलमान को हम गवाह के तौर पर लाएंगे। मुसलमानों के बड़े एक आदमी हैं, एक सच्चे आदमी, हम जिनको सच्चा आदमी मानते हैं, हम अपने बचपन से उनको देख रहे हो, बड़े नेक और सच्चे इंसान हैं। वो अगर कहेंगे कि जमीन मुसलमान की है तो हम मुसलमानों को दे देंगे, मुसलमान उसमें मस्जिद बनाएं। वो भाई अगर वो जो अल्लाह वाले, वो जो इंसान है मुसलमान, वो कहेंगे कि मुसलमानों की जमीन नहीं है तो फिर हम वो जमीन ले लेंगे, अपनी मंदिर वहां पे बनाएंगे। जज ने मुसलमानों से पूछा कि क्या तुम एक्सेप्ट करते हो, तुम्हें कबूल है ये बात, ये फैसला तुम्हें कबूल है? तो मुसलमानों ने कहा कि हमारे आदमी अगर फैसला करेंगे, बताएंगे, तो गवाही देंगे तो हमें भी एक्सेप्ट है, हम भी कबूल करते हैं। हुआ ये कि फैसले के लिए हकम बनाकर मुफ्ती इलाही बख्श नाम के एक बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के वो शागिर्द भी थे, नेक इंसान थे, सच्चे इंसान थे, जिनको हिंदू भाई भी सच्चा मानते थे, मुसलमान भी सच्चा मानते थे। उनको लाया गया गवाही देने के लिए, जज के सामने पेश किया गया। जज मुफ्ती इलाही बख्श साहब से पूछता है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत तारीफ सुनी है कि तुम बड़े सच्चे इंसान हो, तुम अगर कहोगे कि ये जमीन मुसलमानों की है तो हिंदू भाई छोड़ने के वास्ते तैयार है, तुम अगर कहो कि ये जमीन हिंदुओं की है तो मुसलमान भाई छोड़ने के वास्ते तैयार है, कोई झगड़ा नहीं होगा, तुम सच सच बताना कि ये जमीन किसकी है। मुसलमान खुश थे कि एक मुसलमान है, मस्जिद के लिए मुसलमानों के हक में बात करेगा, कहेगा कि मुसलमानों की जमीन है। पूरे मुसलमान खुश खुश थे। हिंदू भाई कुछ नाराज थे कि एक मुसलमान को बुला लिया गया, पता नहीं हमारे हक में क्या फैसला होने वाला है। जज जब मुफ्ती साहब से पूछने लगा, मुफ्ती साहब ने कहा कि नहीं, ये जमीन मुसलमान की जमीन नहीं है, ये जमीन हिंदू भाई की जमीन है। जो सच था वो बता दिया। अंग्रेज जज जो था, लिखने वाला, पॉइंट याद करो, दिलों के तख्ती पे पॉइंट लिख के ले जाओ, सोचो इस्लाम दुनिया में कैसा फैला है। अंग्रेज जज लिखने वाला लिखता है, आज मुसलमान हार गया मगर इस्लाम जीत गया है। इस्लाम झूठी गवाही को मना करता है, मुसलमान तो हार गया मगर इस्लाम जीत गया। जब जजमेंट हुआ, फैसला हुआ, एक मुसलमान हिंदू भाई के हक में फैसला करा, सच और इंसाफ की बात किया। वहां पे जितने हिंदू भाई खड़े थे उसमें से कई सामने आए और कहने लगे, तुम्हारा मजहब अगर इतना प्यारा मजहब है, इतना सच्चा मजहब है, हम भी तुम्हारे मजहब में आते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर मुसलमान होते हैं और हिंदू भाई अपने खुद के जमीन पर अल्लाह का घर मस्जिद बनाता है। इस्लाम दुनिया में ऐसा फैला है। आज भी अगर हम सच्चे बनेंगे, आज भी अगर हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर अमल करेंगे, आज भी हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर, उनके अखलाक पर चलेंगे, खुदा की कसम दुश्मन 100 साल से कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान के दरमियान में आपसी इख्तिलाफात कराकर, आपस में लड़ाकर हुकूमत करने की जो कोशिश कर रहा है, ये दुश्मन 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, लाख साल भी अगर कोशिश करता रहेगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के चिराग से हम इस हिंदुस्तान में इस्लाम को बुलंद कर सकते हैं, मुसलमान की नफरत को लोगों के दिलों से मिटा सकते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। दीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से फैलता है। कोई भी नॉन मुस्लिम मस्जिद में आकर नहीं देखता कि इस्लाम क्या है, मुसलमान मस्जिद में क्या करते हैं, नमाज कैसा पढ़ते हैं, अंदर कैसे होते हैं, क्या, ये कोई नहीं देखता। तुम्हारे कारोबार को वो देखते हैं, तुम्हारे व्यापार को देखते हैं, तुम्हारे लेन देन को देखते हैं,
तुम्हारी बात को देखते हैं, तुम्हारे अखलाक को देखते हैं, तुम्हारे तिजारतों को देखते हैं, तुम्हारे मामलात को देखते हैं। अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, अब्दुल समद, मोहम्मद मुज़म्मिल, फला फला, अगर ये इसके अखलाक अच्छे तो कहता कि इस्लाम अच्छा है, इसके अखलाक बुरे हैं तो इस्लाम बुरा है। यही तो देखते हैं लोग। हमको चाहिए कि अपने अखलाक को अच्छे बनाए, हर मजहब के साथ, हर मजहब वाले आदमी के साथ हम मोहब्बत का सलूक करें, इस्लाम को इज्जत लाने की कोशिश करें। इस्लाम का तो कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, हमारे तरफ से कम अज कम इस्लाम के ऊपर धब्बा न लगे, नुक्ता न लगे, ऐसी जिंदगी हम गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अगले जुम्मा इंशाअल्लाह इस्लाम आज भी कैसे जीत सकता है, इस टॉपिक पर इंशाअल्लाह बहुत सारे वाक़यात के साथ आप लोगों के सामने बयान होगा। 1 बजे से पहले मस्जिद में आने की कोशिश करें। 1 से बयान शुरू होगा, इंशाअल्लाह 1:30 बजे बयान ख़त्म होगा। आप तमाम साथी इंशाअल्लाह अगले जुम्मा जल्दी से जल्दी इस मस्जिद में आने की कोशिश करें। हर जुम्मा एक नए टॉपिक पर कुरान के आयत की तफसीर और लेक्चर इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने खुल्लम खुल्ला जो हक बात है वो बात होगी। आप सभी हजरात जल्द से जल्द मस्जिद में आने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।